Welcome friends, welcome to Saud Edu channel for NTA NET JRF education. Today we are going to discuss one very important concept or you can say it is a very interesting concept that is cost effective analysis in education. So before going through the concept we have to know the basic idea what actually the cost effective analysis is. The cost effective analysis is refers to the consideration of decision alternative in which both their cost and consequences are taken into account in a systematic way. Here, the planner take a decision on the basis of the alternative, okay, in which the better consequences can get the better consequences. Suppose we have 4 5 plan or project or strategy, okay, and the same with the same objective, okay, all the project have the same objective, okay. We have to choose the better one which can get the result, the efficient result, okay. We have to choose the better one by which we can get the efficient in the sense of quality, not the monetary form. So actually in case of cost benefit analysis, what happen, the cost benefit analysis, we only focuses on the rate of return or benefit in the sense of monetary value. But here the cost effective analysis is not only focuses the monetary value but also it both money, we can say, what we have expended for any project or plan. We needs we we, we get we give focus on the monetary quantitative as well as the qualitative, okay, the qualitative value of any project, of any product, okay. So it means how much the quality or the product ha- satisfy our desired goals or desired objective. Suppose we take an example, there are many alternative approaches for pursuing such a goal as raising reading or mathematical achievement. Suppose one school management uh, try to plan try to plan to develop their reading achievement or mathematic achievement among their students. So there are so many strategy available, like, so the school or management committee may decided to adopt on a new material or curriculum for the improvement of the mathematical achievement, or to adopt better teacher training program, or to adopt better educational television program for the achievement of this mathematical achievement, or computer assisted instruction, adoption of computer assisted instruction, or class size, reduction of the class size, okay. So बेसिकली क्या होता है, तो बहुत सारा हमारा पास ऑप्शन रहता है, तो प्लानर को क्या चुनना पड़ेगा, यहाँ से ऐसे एक बेहतर ऑप्शन चुनने पड़ेगा जिससे कि हम हमारा गोल को अच्छा से अचीव कर पाएंगे। मैथमेटिक अचीवमेंट और रीडिंग अचीवमेंट हमारा गोल है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है। हमको ये ऑप्शन से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिससे कि हम चूज करेंगे तो मैक्सिमम बेनिफिट, मैक्सिमम आउटपुट हमको मिलेगा, और मैक्सिमम आउटपुट नॉट इन द मॉनेटरी सेंस, नॉट इन द मॉनेटरी सेंस, okay, it is in a quality, it is the quality means, suppose the mathematical achievement has been raised or improved in the student. So if it may be in only in a numeracy, basic numeracy skill, so that doesn't mean the what we have invested we get in a result in a efficient manner. सो एफिशिएंट इन द सेंस ऑफ क्वालिटी, मतलब स्टूडेंट जो जितना भी स्किल वो सीखेगा, वो स्किल को अगर उसका लाइफ टाइम में उसको यूज कर पा रहा है, प्रैक्टिकल स्किल, जैसे कि वो दूसरा के फील्ड में उसको यूज कर पा रहा है, ठीक है कि नहीं। तो हमारा जो स्किल्ड द प्रोडक्ट हमारा जो निकलेगा, वो प्रोडक्ट में एफिशिएंट होना चाहिए।
हमारा अचीवमेंट जो है, वो जो प्रोडक्ट है, हमारा गोल को सेटिस्फाई करना चाहिए। और अनदर कंसेप्ट दैट इज विथ मिनिमम कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट में हमको क्या करना है, मतलब हम मैक्सिमम आउटपुट इन द सेंस ऑफ क्वालिटी, हम क्वालिटी को मेजर करने के लिए चाह रहे हैं। इधर कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस में हमको बेस्ट अल्टरनेटिव को चुनना पड़ेगा, और बेस्ट अल्टरनेटिव जैसे कि हमारा गोल को, ऑब्जेक्टिव को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है। सो इम्पोर्टेंस क्या है? सो टू एनालाइज एन एजुकेशनल प्लान इन ए क्वालिटेटिव मैनर। सो बेसिकली क्या होता है, इन मोस्ट ऑफ द एजुकेशनल सेटिंग, most of the case, most of the outcome we cannot be easily converted into the monetary term। सबको हम monetary term में हम convert नहीं कर पाएंगे। तो एजुकेशन सपोज एटीट्यूड हो गया स्टूडेंट का, ओके, स्किल हो गया, बिहेवियर मॉडिफिकेशन हो गया, ये सब को तो हम क्या है मॉनेटरी टर्म में कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको एक क्वालिटेटिव मतलब क्वालिटेटिव वे में उसको मेजर करने पड़ेगा। तो तब जाके हमारा जो गोल सेटिस्फाई हो पाएगा। ऐसा नहीं है क्या हम मतलब 500 स्टूडेंट मतलब एनुअल हुए हैं, और वो 2 साल के बाद हम देख रहे हैं वही 500 स्टूडेंट है, मतलब प्रोडक्ट हमारा 500 स्टूडेंट निकाल रहा है, लेकिन उसमें क्या स्किल डेवलप हुआ है कि नहीं है, हुआ है, उसको देखना पड़ेगा। जैसे कि अभी क्या चल रहा है, टीचर ट्रेनिंग चल रहा है हमारे कंट्री में। टीचर तो ट्रेनिंग ले रहे, बहुत सारा टीचर का आउटपुट हमारा आ रहा है, लेकिन सब में थोड़ी स्किल है, स्किल डेवलपमेंट हो रहा है। बहुत कम ऐसा इंस्टीट्यूट है जो स्किल डेवलपमेंट करते हैं। तो हमको क्या करना है इधर, हमको मतलब क्वांटिटी एज वेल एज क्वालिटी को देखना पड़ेगा। हम जितना सारा पैसा और मनी इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, उसका रिटर्न में हमको क्या मिल रहा है, जो रिटर्न मिल रहा है वेदर इट इज एक्चुअली सेटिस्फाई आवर नीड्स, सेटिस्फाई आवर ऑब्जेक्टिव और नॉट। सो वो सेटिस्फाई को देखने के लिए, वो हमारा नीड को, हमारा ऑब्जेक्टिव को देखने के लिए क्वालिटेटिवली एफिशिएंटली एक्चुअली वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, तब जाके हम कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस को अडॉप्ट करते हैं। ठीक है। सो अनदर वे कैन से टू मेजर द कॉम्पिटेंसी मतलब कॉम्पिटेंसी इन द सेंस ऑफ स्किल, ओके, प्रैक्टिकल बिहेवियर, प्रैक्टिकल बिहेवियर, ओके, प्रैक्टिकल बिहेवियर हम इसको भी देखते हैं। इसको मेजर करने के लिए हम तो ऐसे क्वांटिटेटिवली मेजर नहीं कर सकते, उसको क्वालिटेटिव टूल चाहिए। तो क्वालिटेटिव टूल क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस इज ए टूल, इसके माध्यम से हम उसको कॉम्पिटेंसी मेजर करेंगे। तो अप्राइजल यानी इन्वेस्टमेंट, हम जितना कोई इन्वेस्ट किए हैं कुछ, मतलब एक प्रोजेक्ट में, सपोज एजुकेशन में हम इन्वेस्टिंग किए, गवर्नमेंट हमारे लिए इन्वेस्ट कर रहा है एजुकेशन के लिए, उसका रिटर्न में अगर हम मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग जो होता है, सपोज गवर्नमेंट MLL मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग, इसको अचीव करने के लिए गवर्नमेंट एक प्रोजेक्ट दिया है, 20,000 करोड़ रुपया वो प्रोजेक्ट इन्वेस्ट किए। स्टूडेंट 1 से 5 तक वो ट्रांसफर होकर मतलब चले गए, लेकिन बेसिक न्यूमरी स्किल, लैंग्वेज पढ़ना, एडिशन सब्सट्रैक्शन, ये सब करना, मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग, मतलब जो क्लास में जो करना चाहिए, जितना सीखना चाहिए, वो अचीव नहीं हो पा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, हमारा जो कष्ट हम इन्वेस्ट किए थे वो इफेक्टिवली यूज नहीं हुआ, हमारा मकसद जो था वो अचीव नहीं हो पाया। तो उसको मेजर करने के लिए एक्चुअली कितना दूर हम पहुंचे, कितना हमारा गोल अचीव हुआ है, ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ है, उसको मेजर करने के लिए, अप्राइज करने के लिए हमको कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस का जरूरत पड़ता है। सर सपोज एक एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे कि फाइनेंस मिनिस्टर हमारा अलोकेट किया है टू 21,000 करोड़ इन एसएसए, सर्व शिक्षा अभियान में 21,000 करोड़ रुपया एलोकेट किए हैं। सो हम एनालिसिस क्या करेंगे, सो व्हाट एवर मनी हैज बीन इन्वेस्टेड,
had it been yielding the desired result, हमारा एसएस का जो एसएसए का सर्व शिक्षा अभियान का जो ऑब्जेक्टिव था, क्या ऑब्जेक्टिव था? जीरो रिजेक्शन पॉलिसी। जीरो रिजेक्शन मीन्स कोई भी स्टूडेंट रिजेक्ट नहीं होगा और विथ क्वालिटी एजुकेशन उनको मिलेगा। सबके लिए शिक्षा होना चाहिए और विथ क्वालिटी गुणवत्ता शिक्षा। हम 10 साल के बाद हम देख रहे हैं तो सब तो 95% हमारा एनरोलमेंट हो गया, लेकिन एक्चुअली जो स्किल क्वालिटी एजुकेशन मिला कि नहीं मिला? अगर मिला तो हम बोलेंगे ये कॉस्ट जो हम इन्वेस्ट किए थे वो कॉस्ट हमारा क्या था, इफेक्टिव वे में हमारा यूज हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो हमको क्या करना पड़ेगा, फिर रीथिंक करना पड़ेगा, क्या प्रॉब्लम क्या है, उसको फिर रीप्लानिंग करने पड़ेगा, रिकंसिडरेशन हो, तो फिर यार एक बार वो प्रॉब्लम को लूप होल्स को आइडेंटिफाई करके दूसरा और दोबारा प्लान बनाना पड़ेगा, है कि नहीं? कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस हमको रीप्लानिंग रीथिंकिंग करने के लिए मदद करता है। हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये एक मेजर मतलब इंटरेस्टिंग चीज़ है। कैसे हम कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस को हम मनी जितना भी इन्वेस्ट किए हैं वो मनी हमारा कितना दूर इफेक्टिवली यूज हुआ है उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। उसको कैलकुलेट करने के लिए हमारा एक सिंपल सा एक एग्जांपल है, सिंपल सा एक फार्मूला है। क्या फार्मूला है? देखिए, फार्मूला कॉस्ट इफेक्टिव रेशियो उसको बोलते हैं हम। कॉस्ट इफेक्टिव रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हमारा पास टोटल कॉस्ट कितना है, कितना पैसा हम कितना मनी इन्वेस्ट किए, और यूनिटी ऑफ इफेक्टिवनेस हमारा कितना इफेक्टिव यूनिट निकला है, प्रोडक्ट कितना आया है। प्रोडक्ट इन द सेंस ऑफ इफेक्टिवनेस मतलब हमारा जो सब प्रोडक्ट आया है वो प्रोडक्ट हमारा डिजायर ऑब्जेक्टिव को फुलफिल किया होगा, जरूर किया होगा, तब जाके वो प्रोडक्ट को हम ले सकते हैं कॉस्ट इफेक्टिव रेशियो में कैलकुलेट करने के लिए। सपोज हमारा 30,000 करोड़ रुपया इन्वेस्टिंग किए सर्व शिक्षा अभियान प्रोग्राम में, तो हमारा आउटकम क्या है? आउटकम सपोज 7 लाख स्टूडेंट हमारा एनरोल हुए थे। वो 10 लाख स्टूडेंट एनरोल हुए थे, 7 लाख स्टूडेंट हमारा अभी है। वो 7 लाख स्टूडेंट क्या है, वो स्किल बेसिक जो स्किल सीखना चाहिए वो भी हमारा अचीव हुआ है। लेकिन इसमें और एक क्वेश्चन है, हमारा तो क्वेश्चन ये था जीरो रिजेक्शन पॉलिसी, मतलब किसको भी जो भी आएगा उसको रिजेक्ट करेंगे नहीं, ड्रॉप आउट नहीं होगा, जो भी स्कूल आएगा वो भी स्कूल में रहेगा। लेकिन ये तो 10 लाख थे, 7 लाख हो गए, तो इसको नहीं ले सकते। हमारा जितना हम मतलब ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करना चाहिए, हम पहले ऑब्जेक्टिव फिक्स करते हैं, वो ऑब्जेक्टिव हिसाब से जितना मतलब ऑब्जेक्टिव को प्रोडक्ट मतलब ऑब्जेक्टिव हिसाब से प्रोडक्ट निकलना चाहिए। अगर ऑब्जेक्टिव हिसाब से प्रोडक्ट आ रहे हैं तो उसको हम ले सकते हैं, कैलकुलेट करेंगे। तो वो जो कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू निकलेगा वो होगा हमारा कॉस्ट इफेक्टिव रेशियो वैल्यू। वो कॉस्ट इफेक्टिव रेशियो वैल्यू हमेशा हमेशा 1 से ज़्यादा होना चाहिए, 1 से ज़्यादा होना चाहिए। ओके, 1 से ज़्यादा होना चाहिए। 1 से ज़्यादा मीन्स 1 से ज़्यादा होना चाहिए। ऑलवेज कॉस्ट इफेक्टिव रेशियो ओके, ऑलवेज ग्रेटर देन 1 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर 1 से कम हो जाएगा तो हमारा हम ऐसे बोल सकते हैं हमारा कॉस्ट इफेक्टिवली यूज नहीं हुआ है, ठीक है। जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना हमारा इफेक्टिव रेशियो जितना ज़्यादा होगा हमारा कॉस्ट उतना ही इफेक्टिवली यूज हुआ है, हमारा प्रोडक्ट उतना ही इफेक्टिव है हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो यह एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। सो इम्पोर्टेंट पॉइंट हम अगर देखेंगे तो क्या क्या है, तो बेसिक पर्पज ऑफ कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस क्या करते हैं,
which program or combination of program can achieve particular objective at a lowest cost। मतलब हमारा जो प्रोग्राम है, प्रोजेक्ट है, और प्रोजेक्ट को हम पर्टिकुलर लोएस्ट कस्ट में मतलब मार्जिनल कस्ट में हम हमारा ऑब्जेक्टिव हमको फुलफिल करने के लिए ये मदद करता है कस्ट इफेक्टिव एनालिसिस। और क्या करता है, बहुत क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को ये मतलब कंसीडर करता है, लेकिन कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में ओनली मॉनिटरी वैल्यू को मॉनिटरी वैल्यू को कंसीडर करता है। लेकिन इधर बहुत क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मतलब मॉनिटरी वैल्यू भी देखेगा और क्वालिटेटिव एस्पेक्ट इन द सेंस ऑफ हाउ एफिशिएंट आवर प्रोडक्ट उसको भी देखता है। एंड कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस क्या करता है, चूज दोज विद एटलीस्ट कॉस्ट फॉर ए गिवन आउटकम्स। मतलब सोसाइटी कैन यूज इट रिसोर्सेज मोर इफेक्टिवली, सोसाइटी के लिए इफेक्टिव हो जैसे होगा विथ मिनिमम कॉस्ट एंड मैक्सिमम आउटपुट, तो उसको क्या करता है, इंपॉर्टेंस देता है। कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस लाइक कॉस्ट बेनिफिट, ये भी कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जैसा है, लेकिन कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस में ऑल कॉस्ट ऑफ ए प्रोजेक्ट कैन बी कैलकुलेटेड। हम इधर ऑल कॉस्ट बोथ मतलब डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट जितना भी हमारा खर्च हो रहा है, इन्वेस्टिंग हो रहा है, और इनडायरेक्ट बेनिफिट भी जो भी आ रहा है उसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं। लेकिन कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में सिर्फ डायरेक्ट टेंजिबल जितना भी हम इन्वेस्टिंग किया है हमको कितना पैसा आ रहा है उसको देखते हैं। Cost effective analysis emphasizes that both the cost and effectiveness aspect are important and must be measured। मतलब हमारा कितना मनी इन्वेस्टिंग किया है और उसका इफेक्टिवनेस कितना आया है, जितना प्रोडक्ट हमारा आया है वो प्रोडक्ट का क्वालिटी कितना दूर है, ऑब्जेक्टिव कितना दूर सेटिस्फाई किया है, वो दोनों को मतलब हमारा डाटा को कंपैरिजन करके हम मेजर करते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस दोनों डाटा को एम्फासाइज देता है, लेकिन कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में ओनली मॉनिटरी वैल्यू को एम्फासाइज दिया जाता है। मीन्स हम अगर जितना पैसा भी खर्च कर रहा है, मनी इन्वेस्टिंग कर रहा है, उतना रिटर्न में हमको बेनिफिट कितना मिल रहा है, प्रॉफिट कितना मिल रहा है, उसको एम्फेसिस करते हैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में। लेकिन कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस में हम वो मनी जो हम इन्वेस्टिंग किए थे उसका रिटर्न में हमारा जो प्रोडक्ट आया है कितना क्वालिटी आया है उसको मेजर करता है। कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस इज प्रिफर्ड मेथड व्हेन इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर द बेनिफिट। मतलब हम जब बेनिफिट मेजर करने में के लिए जब इम्पॉसिबल होता है, बेनिफिट इन द सेंस ऑफ मॉनिटरी टर्म, सॉरी मॉनिटरी टर्म्स, सब चीज को हम मॉनिटरी टर्म से हम मेजर नहीं कर पाते हैं, सो इसके लिए कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस का जरूरत पड़ता है क्वालिटी चीज को मेजर करने के लिए। सो इट इज यूज्ड टू इवैल्यूएट टू और मोर अल्टरनेटिव दैट विल अचीव द सेम ऑब्जेक्टिव विदाउट मेजरिंग द बेनिफिट। मतलब हमारे साथ बहुत सारा बेनिफिट मतलब ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन मीन्स स्ट्रैटेजी बहुत सारा रहेगा, हमको स्ट्रैटेजी से एक चुनना है जो स्ट्रैटेजी हमारा ऑब्जेक्टिव को सेटिस्फाई करेगा विथ मिनिमम कॉस्ट। और ऑब्जेक्टिव सेटिस्फाई इन द सेंस ऑफ क्वालिटी ऑब्जेक्टिव, मतलब क्वालिटी प्रोडक्ट, ओके, दैट मस्ट बी इन क्वालिटेटिव इन एफिशिएंट वे, ओके। It may also be used in a situation where an objective is mandate and program termination is not a option. Okay. So cost effective analysis also used in case of when where an objective is mandated. Objective, suppose we take an example of sustainable development goal. Okay, sustain millennium in 2000 there is one project, one program you can say have been conducted by the UNESCO, that is millennium development goal. Okay, that is from 2000 to 2015, 2015 the goal has been made. There was only seven goal was there, but in the 15-year interval the goal has not achieved in an efficient way. So what the UNESCO
UNESCO has made he made UNESCO has been made some recommendation for increasing the time interval. It means it increasing from 2015 to 2030, मतलब 30 तक को बढ़ा दिया गया। उसको क्यों बढ़ा दिया गया? हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हुआ, ठीक है, उतना टाइम इंटरवल में, लेकिन हम टर्मिनेट नहीं किया वो प्रोजेक्ट को, टर्मिनेट नहीं किया, लेकिन वो उसको टाइम इंटरवल को बढ़ा दिया, ठीक है। ऑब्जेक्टिव हमारा सेम रहा, तो क्यों हम टाइम इंटरवल को बढ़ा दिया? हम कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस किए, हमारा जो जितना भी हमारा आउटपुट आया उतना आउटपुट हमारा ऑब्जेक्टिव को सेटिस्फाई नहीं किया था, इसलिए हम फिर 2030 तक उसको बढ़ा दिया ऑब्जेक्टिव को सेटिस्फाई करने के लिए। तो वो तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में हम नहीं कर सकते, उसको इसको मेजर करने के लिए हमको कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस चाहिए, तब जाके हम क्वालिटी चीज को मेजर कर पाएंगे, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस. So it is a very strength, you can say it is a very important tool which can measure the both cost and effectiveness data by comparison, both which should readily available. मतलब हमारा पास कॉस्ट रहेगा और इफेक्टिव कितना, इफेक्टिवनेस आउटपुट कितना है विथ द सेंस ऑफ एफिशिएंसी रहेगा, तब जाकर हम कंपैरिजन कर पाएंगे। कंपैरिजन करके हम वो प्रोजेक्ट को अगर वो हमारा सेटिस्फाई हुआ कि नहीं हुआ, फिर दोबारा हम उसको रीथिंक करेंगे और रीप्लानिंग करेंगे दोबारा उसको फिर इम्प्लीमेंट करने के लिए। वो एक हमारा एक प्लेटफॉर्म देता है कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस, ये इसका स्ट्रेंथ होगा। और लिमिटेशन हम बोल सकते हैं, अगर cost effective analysis we can compare the effectiveness ratio among the alternatives if they all have the same goal. Okay, हम अल्टरनेटिव जो 4 5 6 7 प्रोजेक्ट हमारे पास है और उसका आउटपुट अगर हमारा कुछ भी आ रहा है, वो आउटपुट कितना इफेक्टिव है हम कब कंपेयर कर पाएंगे? जब हमारा जो प्रोजेक्ट हमारा पास है वो प्रोजेक्ट का सबका गोल सेम होना चाहिए, तब जाके हम ये आउटपुट को हम दूसरा एक प्रोजेक्ट के साथ कंपैरिजन कर पाएंगे। लेकिन कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस में ये एक बहुत बड़ा समस्या होता है, ठीक है। हम कंपेयर करने के लिए सेम गोल with the various project, it is very, you can say very challenging task for a planner. You can say it is a one of limitation of this cost effective analysis. So for this lecture, this is all about the cost effective analysis. You can say very briefly, cost effective analysis is a decision oriented tool. You can decide which plan or project is suitable for achieve the best, better, we can say better in the sense of efficient result, efficient output, okay, in the qualitative manner, okay, by which the society may get the better benefit from it, okay. So this is all about the cost effective analysis. If the video or this lecture really helpful to you to explore the knowledge, you can share this video with your friends, with your colleagues. So thank you be having with this channel. Thank you all of you.